الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ شعبان المعظم برکتوں والا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان اس کی آبیاری کا مہینہ یعنی اس کو پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان فصل کو کاٹنے کا مہینہ۔ تو ایک بالترتیب یہ مہینے جو ہیں یہ ایک کے بعد ایک یہ برکتوں والے، فضیلتوں والے مہینے آ رہے ہیں بالترتیب۔ اور اسی میں کہا جاتا ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج، کہ ان کا چاند دیکھنا واجب الکفایہ ہے۔ یعنی جس طرح فرض کفایہ کہ ایک اگر بستی میں چند لوگ نماز ادا کر لیں عیدین کی تو کچھ لوگ کر لیں اور کچھ نہ کریں تو کفایہ، فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، یعنی سب کی حاجت نہیں رہے گی تو کچھ نہیں بھی کرتے۔ تو اسی طرح یہ واجب کفایہ ہے کہ بستی کے کچھ لوگ ان کے چاند کو دیکھیں تو یہ واجب ادا ہو جائے گا، اور واجب کا حکم فرض کے بعد کا ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ شعبان المعظم، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اہم رات جو کہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے عطا فرمائی ہے۔ اور جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جیسے کہیں سیل لگی ہے کہ بس لوٹ لو، لوٹ سیل لگی ہے کہ یہاں بہت کچھ ملے گا اور تمہیں ایک کے دام میں کئی چیزیں ملیں گی، ایک پیمنٹ کرو گے اس پر کئی چیزیں ملیں گی۔ تو یہاں جو شب بارات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، تو گویا یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کی رات ہے، اس کی برکتیں لوٹنے کی رات ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی ہدایت کا طلبگار کہ میں اس کو ہدایت دے دوں، ہے کوئی برکتوں کا طلبگار کہ اسے برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی بھی دکھیارا، کوئی بھی مجبور، کوئی بھی بے بس، کوئی بھی بے کس، کوئی بھی بیمار، کوئی بھی لاچار، کون ہے مجھ سے مانگو کہ آج کی رات میں اسے عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ایسی مبارک رات ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بلکہ ہم اس حدیث کو لے کے چلتے ہیں کہ سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر میں نہیں ہے، تو مجھے یہ دل میں خیال آیا کہیں کسی دوسری زوجہ کے پاس نہ ہو، تو میں اٹھ کر گئی، اور میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو سیدہ فرماتی کہ میں واپس آ گئی اور اپنے بستر پر آ کے لیٹ گئی، تو کچھ دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ تو سیدہ فرماتی میں خاموش رہی، تو پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہوں یہ کون سی رات ہے؟ کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ بنو قلب کی بکریاں، کیونکہ مدینے میں جو بنو قلب قبیلہ تھا وہ بکریاں پالنے میں سب سے زیادہ مشہور تھا، کہ سب سے زیادہ جو بکریاں پالتا ہے وہ بنو قلب کا قبیلہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے گنہگاروں کو اس رات جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے جتنا کہ بنو قلب کی بکریوں کے بال۔ تو جب یہ فرمایا
यानी ये अच्छा, इस पर एक बहस होती है, बात की जाती है कि माजल्ला ये हदीस जो है ये हदीस ज़ईफ है। हालांकि इस हदीस में सबसे पहली बात ज़ौक़ तो पाया ही नहीं जाता, और फिर भी अगर हम देखें, अगर बिलफर्ज हम इसको ये देख लें कि ये हदीस ज़ईफ है, अगरचे उलमा किराम फरमाते हैं इसमें ज़ौक़ नहीं है, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि ज़ईफ है, तो ज़ईफ हदीस ऐसी नहीं है कि माज़ल्ला मुस्लिम माज़ल्ला झूठा तसव्वुर करें, बल्कि वो इस तरह है कि चारों आइमा का इस पर मुत्तफिका इजमा है कि ज़ईफ हदीस जो है फजीलत के एतबार से ये कबूल की जाएगी। फजीलत के एतबार, उसमें फजीलत की बात हो रही होगी, तो ज़ईफ हदीस जो है कबूल की जाएगी। तो ये उनका मुत्तफिका ये इजमा है इस पर आइमा का कि ज़ईफ हदीस फजीलत के एतबार से ली जाएगी। तो अब यहाँ देखें कि हदीस अगरचे ज़ईफ नहीं, लेकिन फिर भी ये बात है कि फजीलत के दर्जों पे, हाँ, जैसे भारी काम होते हैं, जैसे हलाल हराम के मामलात होते हैं, तो उस पे ज़ईफ हदीस की निस्बत दूसरी हदीस हसन को लिया जाता है, लेकिन यहाँ ज़ईफ हदीस के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि नहीं, फजीलत के एतबार से हम ज़ईफ हदीस को ले सकते हैं, इसमें आइमा का इत्तफाक है और इजमा है। तो और ये इसी पर हम देखते हैं, ना सिर्फ सैयदा आयशा रिवायत करती है, और ये ज़हन में रखिए कि औरतों में जो सबसे ज्यादा हदीस मुबारका बयान की है वो कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीका, और दूसरे नंबर पे इसी बात को, इस रात की शब की फजीलत को मौला अली शेर खुदा भी बयान करते हैं। आप भी इसकी फजीलत बयान करते हैं कि इस रात अल्लाह ताला बेशुमार गुनहगारों को जहन्नुम की आग से आजादी का परवाना अता फरमाते हैं। और फिर हमारे उलमा किराम ये भी फरमाते हैं, आप अहादीस मुबारका की कुतुब का मुताला करें तो तिरमिज़ी शरीफ में इसके बाब बंधे हुए हैं, शब-ए बारात की फजीलत के लिए बाब बंधे हुए हैं कि इस रात की कितनी फजीलत है और कितनी इस रात की बरकत है। हाँ, अब जब एक चीज और भी, जैसे कहा जाता है रोजा ना रखो, रात को इबादत ना करो, हालांकि देखिए हमारे उलमा कराम ये फरमाते हैं कि रात को अगर कोई सारी जिंदगी, मतलब एक कोई नौजवान आया है और वो इबादत की तरफ माइल नहीं, रोजा रखने की तरफ माइल नहीं, अगर वो इस रात की फजीलत का बयान सुनने गया है और अपनी रात एक इबादत में गुजार रहा है, और कोई बयान का कोई नुक्ता उसके दिल पर चोट लगा जाए और वो एक रात की इबादत उसकी जिंदगी में ऐसा इंकलाब बर्पा कर दे कि सारी जिंदगी वो नमाजों से जुड़ जाए, सारी जिंदगी वो नफली रोजों से और फर्ज रोजों से जुड़ जाए, जो पहले रोजे चखता तक नहीं था, जिसने एक रोजा ना रखा हो फर्ज का, लेकिन आज आके अगर आ गया किसी के कहने पर, किसी की दावत देने पर वो आ गया और उसकी जिंदगी की काया पलट गई, तो फिर इसमें क्या बुरा है? यानी अगर कोई अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है, अल्लाह उसको अपनी तरफ राह दे देता है, तो यही उलमा किराम फरमाते हैं कि, और वैसे भी अगर ये है कि ये साबित नहीं, बात लोग कहते हैं साबित नहीं, तो आप ये बताएं कहाँ ये मना किया गया है कि इस रात जागकर इबादत नहीं करनी, यही साबित कर दिया जाए। किस जगह ये आया है कि इस रात जागकर इबादत ना की जाए, इस दिन का रोजा ना रखा जाए? ऐसा कहीं भी नहीं आया। तो फिर इससे क्या पता चला? इबादतें करना, रोजे रखना, ये तो अल्लाह का पसंदीदा अमल है, और अल्लाह ताला किस अमल से बंदे को जिंदगी की काया पलट दे, कौन सा अमल उसकी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो इसी निस्बत से अवामुन नास में सलातो तस्बीह भी पढ़ी जाती है इस रात में, और सलातो तस्बीह की बड़ी फजीलत बयान की गई है कि सलातो तस्बीह भी पढ़ी जाती है, सलातो तौबा भी पढ़ते हैं, और दीगर जिक्र और अस्कार किया जाता है। शाबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत के बाब में एक और रिवायत में बयान करते चलूं, फरमाया है कि इब्तिदाई शाबानुल मुअज़्ज़म के इब्तिदाई 3 दिनों के 3 रोजे, इब्तिदा के 3 दिनों के, पहली तारीखों के 3 तारीखों के 3 रोजे, और बाद की आखिर की तारीखों के, यानी जैसे आखिर की तारीख है 27, 28, 29, अगर 29 का चांद है, या फिर 28, 29, 30, तो ये 3 शुरू के 3 आखिर के, जो ये 6 रोजे रखता है, इसके मुतालिक फजीलत आई है कि रोजे महशर अल्लाह तबारिक व तआला शाबानुल मुअज़्ज़म के इन 6 रोजे रखने वालों को अल्लाह ताला महशर में एक ऊंटनी अता फरमाएगा, जो ऊंटनी पर सवार होकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
تو आप देखिए इस महीने की। और फिर दूसरी बात, सबसे अहम बात कि शाबान की निस्बत किससे है? अल्लाह के महबूब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रजब मेरा महीना, रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना। तो देखिए हम अपनी बात करें कि हम अपने जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, अपनी औलादों से, अपने बहन भाइयों से जिससे मोहब्बत होती है, अपने शरीके सफर से जिससे मोहब्बत होती है, तो हम अपनी निस्बत ज्यादा उनकी तरफ उनका ख्याल करते हैं, उनकी पसंद को देखते हैं। तो अल्लाह पाक को जिनसे, जैसे शायर कहता है, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक के हबीब नहीं महबूब और मोहिब में मेरा तेरा। तो यहाँ क्या है कि महबूब जो मेरा है वो सब तेरा है। तो निस्बत किससे है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस माह मुकर्रम की निस्बत है। और अल्लाह ताला ने, अच्छा, शब्बे बारात इसको कहा जाता है, यानी निजात वाली रात। किस चीज से निजात? जहन्नुम से निजात। शब्बे तौबा भी कहा जाता है, शब्बे तौबा भी कहा जाता है कि तौबा की कबूलियत की रात। कहीं और आपको नहीं मिल रहा। शब्बे मेराज आई, शब्बे कदर आई, लेकिन इस महीने में कि ये आका करीम उनकी फजीलतें अपनी जगह मौजूद हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन से महीने में अल्लाह ने जहन्नुम की आग से निजात की रात अता फरमाई? अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के महीने में। क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादत, अल्लाह अपने महबूब को जानता है, अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को जानता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में आखिरी दौर में गुनाह बहुत सरायत कर जाएंगे, जैसे बनी इसराइल में गुनाह सरायत कर गए, सवालात बेपनाह, अमल कलील। मेरी उम्मत सवाल बहुत, बनी इसराइल वाली। इसको हजरत इब्ने अब्बास रिवायत फरमाते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बनी इसराइल वाली आदत आ जाएंगी, उसकी तरह गुनाह करने लग जाएंगे मेरी उम्मत में। लेकिन क्या क्या सवालात की कसरत हो जाएगी। ये सब अल्लाह जानता है, इस चीज को अल्लाह जानता है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह इस चीज को जानता है। लेकिन क्या अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के माह मुकर्रम में अल्लाह ने जहन्नुम से निजात की रात अता फरमाई। क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा हबीब अपने गुलामों को जहन्नुम में नहीं देख सकते, मेरे रसूल अपने गुलामों को जहन्नुम में नहीं देख सकते। तो अल्लाह ने फरमाया, आ जाओ इस रात को, मेरी रहमत मुंतजिर है, तौबा करोगे तो मैं तौबा को, दुनिया जिंदगी भर गुनाह करने वाला आज आ जाए मेरी रहमत से अपने आप को बख्शवा ले। जिंदगी भर बुरे अमल करने वाला, लोगों की हक तलफी करने वाला, लोगों को सताने वाला, आज कोई बड़ा डाकू, बड़ा चोर, बड़ा लुटेरा, बड़ा गुनहगार भी आ गया मेरे दर पर, तो उसकी तौबा को मैं कबूल करूंगा। अगर वो आए और तौबा करे, वो आए और तौबा करे तो उसकी तौबा को मैं कबूल करूंगा। लेकिन यहाँ भी जो लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी वो एक वक्ती हुक्म है। वक्ती हुक्म से क्या मतलब, अगर वो इससे रुजू कर ले तो अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल फरमाए। आदि शराबी, कतई रहमी करने वाला, ताल्लुक तोड़ने वाला, अल्लाह फरमा रहा है जब तक ताल्लुक टूटा रखेगा, तोड़ा रखेगा, उसकी तौबा नहीं कबूल। उस वक्त तक उसकी तौबा का अल्लाह इंतजार करेगा जब तक कि वो ताल्लुकात जोड़ ना ले, कतई रहमी से तौबा न कर ले। और तौबा कर ले तो अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। इसी तरह शराब का आदि, जब तक कि वो शराब पीने से तौबा न कर ले, यहाँ ये एक मशरूत बात की जा रही है, शर्त लगाई जा रही है क्या कि शराब पीने से तौबा कर ले तो मैं इसको भी बख्श दूंगा। कतई रहमी से तौबा कर ले और उससे मुंह फेर ले तो मैं उसको भी बख्श दूंगा। आप सोचें कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी इनाम की रात है। हम लोगों को बहुत इसका वो होता है, पता करते रहते हैं कहाँ सेल लगी है, लॉन की सेल लगी है, किस चीज की सेल लगी, जाएं। और फिर जब वहां ऑफर मिलती है बाय वन और गेट वन फ्री, इतनी खुशी होती है। अगरचे वो अपना नफा निकाल चुके होते हैं, उनको अभी भी नुकसान नहीं हो रहा होता, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है यहाँ आओ, यहाँ 1 टका नहीं देना पड़ेगा, $1 की जरूरत नहीं, ₹1 की जरूरत नहीं, 1 रियाल नहीं चाहिए। यहाँ तो आओ और मांगो, और बगैर पैसे के, बगैर किसी चीज के, बगैर जरे मुबादला के तुम्हें अता करूंगा। तो तुम आओ और मांगने वाले बन जाओ। तो कहते यहाँ तक कि अल्लाह उसको पुकारता, यहाँ तक कि फजर हो जाती है, अल्लाह
बुला रहा होता है अपने बंदों को मग़फ़िरत की तरफ, रहमत की तरफ, बख्शिश की तरफ, अताओं की तरफ और जन्नत की तरफ। जन्नत की तरफ रब करीम अपने बंदों को बुलाता है। कोशिश करें, खूब इस्तेमाल करें। हमारे उलमाए किराम, ये दुनियावी पॉइंट है लेकिन हम अगर इसको ले लें तो बहुत अच्छा होगा कि हमें जिस रात बेदारी करनी है, जागना है, और कहते हैं ना वो वैसे भी तहज्जुद का वक्त जो होता है वो अल्लाह की रहमत के कुर्ब का वक्त होता है। कोई भी सारा साल तहज्जुद के वक्त अल्लाह की रहमत के कुर्ब का वक्त है। ये नहीं एक शब बारात की बात तो बहुत फजीलत वाली, लेकिन हम यहाँ करें तो उस वक्त जब बंदा जागता है, अपने रब से तलब करता है, उसकी रहमतों का उस वक्त नुज़ूल हो रहा होता है, तो उस वक्त हम अपने रब से जब मांगते हैं वो वक्त कितना एक रूहानी जैसे नूर बरस रहा होता है तहज्जुद की वक्त, जैसे हम लोग अपने रब से मतलब बिल्कुल करीब हूँ। वैसे तो अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों के शाहरग से करीब हूँ, कुरान करीम में आता है हब्ल वरीद, शाहरग से करीब हूँ। तो शाहरग कितनी करीब होती है? शाहरग कट गई आपकी जान खत्म। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? मैं अपने बंदों की शाहरग से भी करीब हूँ, ये फरमा रहा है। और फिर दूसरी अहम बात क्या है, हम सोचते हैं कुरान करीम में एक आयत है, और आप देखिए अगर आपने कहीं कोई चीज लेनी है, आपके पास कैश खत्म हो गया, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड हर एक के पास नहीं होगा, ठीक है ना, कैश खत्म हो गया, अब आपने किसी से कुछ कर्ज लेना है, कुछ पैसा लेना है कि बाद में मैं लौटा दूंगा, तो आपको पूछेगा आपके पास कोई कीमती चीज है जिसको मेरे पास रहन रख दो, रहन गिरवी मेरे पास रख दो, आप रख दो। आपके पास कोई गोल्ड की चीज है, कोई चांदी की चीज है, कोई डायमंड है, कुछ है, कोई ऐसी चीज है कीमती चीज है, मेरे पास रहन रखो, उसकी एवज में आपको पैसे दूंगा, जब आप मेरे पैसे लौटाओगे तो आपकी ये कीमती चीज मैं आपको लौटा दूंगा। उससे क्या पता कोई आपके पास कोई एक बेकार सी चीज है, गैर मुअस्सर कारामद चीज नहीं है, आप वो रहन रखोगे, कोई आपको कैश देगा? पता क्या चला? कीमती चीज पर ही आपको दिया जाएगा नफा, पैसा, माल, कीमती चीज पर। अब अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है कि मोमिनों को उनकी जान के एवज हमने गिरवी रखा है जन्नत के लिए। यानी क्या पता चला, हमारी जानें इतनी कीमती है कि अल्लाह के यहाँ रहन है, रहन यानी कीमती। अल्लाह पाक ने अपने बंदों की जानों को ऐसा कीमती, अमल कर लो जन्नत तुम्हें मिलेगी, अमल कर लो तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो क्या पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुंतज़िर है अपने बंदों की, और वो कहता है कि मैं तौबा कबूल कर पाऊंगा। और हमें चाहिए कि इस दिन जिस रात हमने इबादत करनी है, हमने इबादत करनी है, दिन को थोड़ा सा वक्त आराम करें। कैलूला इसका हुक्म है, ये सुन्नत है, कैलूला ये सुन्नत है, हम थोड़ा कैलूला करें, और रात को भी थोड़ा सा ईशा पढ़ के अगर सुनना चाहे तो सो जाए, लेकिन उससे पहले अगर कैलूला कर लेंगे तो हमें बड़ी फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद रात की इबादत में तबीयत खूब जमेगी। हमारे यहाँ से आज इस चीज का, ये बात हमारी थोड़ी सी टॉपिक से हटके, लेकिन इसी के लिए फायदेमंद है। कैलूले का एक रिवाज खत्म हो गया, हालांकि हमें 5 मिनट भी, अगर 10 मिनट भी लेट जाए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सदक़े आप देखिए हमारी तबीयतें बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। इससे कैलूले में बरकत है, आपकी सेहत में, आपके अमलों में अल्लाह बरकत डाल देता है, अमलों में बरकत। वो जो सुबह का सोना है उसमें बरकत नहीं, खैर नहीं, उसमें वो उसे कहते हैं ये लूला, यानी क्या, ये कहते हैं अरबी में रुकावट को। रुकावट क्यों? आपके माल में रुकावट, आपकी सेहतों में रुकावट, आपके कामों में रुकावट, जो उसके मुतालिक आया कि सुबह का सोना जो है ये आपकी चीजों में रुकावट का बायस बनता है, और दोपहर का सोना जो है आपकी चीजों में बरकत का बायस बनता है, क्योंकि सरकारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और आपकी हर सुन्नत में नफाई कसीर है, हर सुन्नत में नफाई कसीर है। हमें चाहिए कि इस शाबानुल मुअज़्ज़म के सदक़े इसकी हम एक मिनट को कैश करें, एक और शब बारात को भी, यानी इससे इसमें इबादतें करें, खूब दुरूद पाक की कसरत करें। और हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपनी शब बारात को 3 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ था।
शब बारात को लोग पूछते हैं कहाँ सनद, तो ये सनद इससे बड़ी सनद और कहाँ मिलेगी। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपनी रात को शब बारात को 3 हिस्सों में डिवाइड करा था। हम भी आपकी सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पहला हिस्सा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक, 1/3 रात का हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक, फिर उसके बाद दूसरा तिहाई हिस्सा इस्तिग़फ़ार जिक्र और इज़्कार, तीसरा तिहाई हिस्सा इस्तिग़फ़ार जिक्र और इज़्कार, और आखिरी जो तिहाई हिस्सा होगा, आखिरी हिस्सा जो है उसमें रुकू सुजूद नवाफिल। तो इंशाअल्लाह हम भी इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी शब बारात को, शब बेदारी को हम इस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक़ात अता फरमाए। ये बात याद रखिएगा, मैं इबादत करूंगी, मैं क़याम करूंगी, मैं सुजूद नहीं, हमने नियत क्या करनी, अपने रब की दी हुई तौफीक और रहमत के सदके मैं इस रात को जाग कर दुरूद भी पढ़ूंगी, इस्तिग़फ़ार भी करूंगी और नवाफिल भी पढ़ूंगी और कुरान भी पढ़ूंगी, मगर मेरे रब की रहमत और उसकी दी हुई तौफीक के सदके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम।